Good morning, my dear students. This is Dr. Sakshi Mittal welcomes you all to my YouTube channel. Today I will teach you Sonnet 15th from the sonnet sequence Astrophel and Stella written by Sir Philip Sidney. Firstly, I want to tell you about the central idea of the sonnet so that it will become easier for you to understand the poem. The central idea of the poem is that unless the poet is inspired with the vigor of his own invention, he will not find true inspiration from the other sources. फिलिप सिडनी कहते हैं जब तक पोइट अपनी इन्वेंशन खुद वो अपनी पोइट्री में क्या लिखना चाहते हैं उससे इंस्पायर नहीं होंगे तब तक वो अदर सोर्सेज से ट्रू इंस्पिरेशन नहीं ले सकते. Like the first sonnet, this sonnet is a love poem as well as a poem about writing poetry. Means to say how you have to write a good poetry. The poet is talking to the other poets. Philip Sidney और सभी पोइट से बातें कर रही हैं. He tells the other poets that they search for inspiration from the far-fetched sources. पोइम में मैं आपको डिफरेंट सोर्सेज बताऊंगी जो कि अदर पोइट्स जो हैं सर्च करते रहते हैं अपनी पोइट्री को लिखने के लिए कि वो कहाँ से इंस्पिरेशन ले सो डैट दे कैन राइट द गुड पोइट्री. दे यूज़ डिक्शनरी इन ऑर्डर टू सर्च proper words and expressions for their poetry. The poet refers to gathering flowerings and all these things. Sidney tells the other poets that the methods they employ to write the poetry are artificial, not natural. In the end, he advises them that the best method to find inspiration for writing poetry is to look at the sweet face of Stella. कि अगर तुम्हें अपनी पोइट्री लिखने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए तो तुम कहाँ से ले सकते हो? स्टेला के स्वीट फेस से ले सकते हो. एस्ट्रोफिल सेज डैट स्टेला इज़ हिज म्यूज़ who lives in his heart. She is the source of his poetic inspiration. The poet hopes that, inspired by her, he will write really noble poetry. Let's begin the poem. You dad do search for every pearling spring, which from the ribs of old Parnassus flows, and every flower, not sweet perhaps, which grows near thereabouts, into your poesy writing. In this poem, poet comments on the other poets of his day. सिडनी जो है अदर पोइट्स के ऊपर कमेंट करते हैं. क्या कमेंट कर रहे हैं कि दीज पोइट्स गो फॉर इंस्पिरेशन टू द डिफरेंट सोर्सेज. क्या कहते हैं? यू हु सर्च फॉर एवरी, पर्लिंग होता है एवरी फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम, कि कोई भी तेज़ी से बहती हुई जो स्ट्रीम है, विच फ्लोज फ्रॉम द रिब्स ऑफ ओल्ड माउंट पैरनसस, जो ओल्ड माउंट पैरनसस है उसकी रिब्स में से बहुत तेज़ गति से बहती हुई स्ट्रीम भी तुम्हारी पोइट्री का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकती है. एंड गैदर एवरी फ्लावर, हियर फ्लावर्स स्टैंड फॉर द आइडियाज़ टू पुट इनटू देयर पोएम्स, कि भी कोई भी जो है फ्लावर वो भी तुम्हारी पोइट्री का आइडिया हो सकता है. नॉट द स्वीटेस्ट वन परहैप्स विच ग्रोज नियर देयर इनटू योर पोइट्री. दूसरे पोइट्स को कमेंट करते हुए कहते हैं कि तुम जो है अपनी पोइट्री के लिए किसी भी सोर्स को इंस्पिरेशन मान लेते हो. You that do dictionaries method bring into your rhymes running in rattling rows. You that poor Petrarch's long deceased was with newborn sighs and dissonant wit do sing. In these lines, poet says that there are still other poets who are even worse. कुछ पोइट तो ऐसे हैं उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी है. They hunt dictionaries, वो डिक्शनरीज़ को कंसल्ट करते हैं फॉर राइमिंग एंड एलिटरेटिव वर्ड्स, अपनी पोइट्री में राइम अच्छे से लाने के लिए और एलिटरेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए वो डिक्शनरीज़ को कंसल्ट करते हैं. They use long rows of alliterations. Their poems are entirely artificial. They are merely rhyming and versifying. Sidney advises such poets
To shun such artificial ways, name and fame can never be won by such devices. कहते हैं तुम ये सारे आर्टिफिशियल वेज को छोड़ दीजिए, क्योंकि नाम है और जो प्रसिद्धि है वो कभी भी, जैसे डिक्शनरीज़ को हमने कंसल्ट कर लिया, पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा राइम स्कीम अच्छे से हमने प्रोड्यूस कर दी, बहुत सारे एलिट्रेटिव वर्ड्स को यूज़ कर लिया, इन सभी को यूज़ करके नेम एंड फेम जो है वो जीता नहीं जा सकता. रादर दे शुड seek for inspiration from their own feelings and emotions. They should look into their own heart and write. You that poor Petrarch's long decreased was. फिलिप सिडनी कहते हैं कि these poets go for inspiration to the ancient classical poets or to the Petrarch who has been long dead. या फिर अपनी पोइट्री के लिए जब इन्हें इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो ये एंशियंट क्लासिकल पोइट्स की तरफ जाते हैं, पेट्रार्क को पढ़ते हैं जो कि बहुत टाइम पहले मर चुके हैं. दे बोरो देयर पोइटिक डिवाइसेस एंड वॉर्न आउट फ्रेजेस फ्रॉम दीज sources. Then what they do? They try to fit these phrases into their own poetry. It makes their poetry awkward and artificial. तो फिलिप सिडनी कहते हैं कि आपकी पोइट्री अगर आप ऐसा करते हो तो और ज़्यादा आर्टिफिशियल लगती है. इट हैज़ बिकम अ फैशन टू सिंग ऑफ वॉज इन पेट्रार्कन लैंग्वेज. सच बोरोड मटेरियल एंड इमिटेशन कैन नेवर बी अ सोर्स ऑफ एनी रियल पोइटिक अचीवमेंट. You take wrong ways, those far-fetched helps be such as to bewray a want of inward touch, and sure at length stolen goods do come to light. इसमें क्या कहते हैं देखिए सर फिलिप सिडनी कि such borrowed materials and imitation can never be a source of any poetry, and use of such stolen goods कि चुराया हुआ जो मटेरियल है वो क्या होगा, सून एक्सपोज्ड. यू टेक रॉन्ग वेज. अदर पोइट्स को कहते हैं कि तुम रॉन्ग वेज, गलत तरीके अपनाते हो. दोज फार फैच्ड एड्स, जैसे कि तुम किसी भी दूर दूर तक जो आप तुम्हारे मन में इमेजरी आती है उसकी सहायता लेते हो. सच एज एक्सपोज ए वांट ऑफ इनर टच एंड श्योरली एट लास्ट स्टोलन गुड्स डू कम टू लाइट. इट रिवील्स अ लैक ऑफ इनहेरेंट पोइटिक एबिलिटी एंड रियल इंस्पिरेशन. फिलिप सिडनी कहते हैं यदि तुम ऐसा करते हो तो ये बात क्या शो करती है कि तुम्हारे अंदर पोइटिक एबिलिटी नहीं है और रियल इंस्पिरेशन की भी कमी है. सिडनी क्रिटिसाइजेज सर्वाइल इमिटेशन एंड यूज़ ऑफ स्टाइल एंड आउटडेटेड कन्वेंशंस. कहते हैं कि बासी मीन्स टू से पहले यूज़ किया हुआ सारा मटेरियल और आउटडेटेड परंपराओं पर ही टिके रहना, उन्हीं परंपराओं को ही यूज़ करना, मैं इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करता हूँ. रियल इमिटेशन होनी चाहिए, रियल इमेजिनेशन होनी चाहिए, आपके खुद के आइडियाज़ होने चाहिए और तब आपको अपने दिल में झांक कर फिर लिखना चाहिए. दैट पोइट्री विल बी ट्रू पोइट्री. बट इफ़ बोथ फॉर योर लव एंड स्किल योर नेम you seek to nurse at fullest breast of fame, Stella behold and then begin to indict. फिलिप सिडनी कहते हैं बट इफ़ यू सीक, यदि तुम ढूंढ रहे हो, बोथ फॉर, दोनों चीज़ों के लिए, योर लव एंड स्किल, तुम्हारे प्यार को भी और तुम्हारी पोइट्री लिखने की कला को भी, टू नर्स योर नेम एट द फुलेस्ट ब्रेस्ट ऑफ फेम, फिर तुम्हारा नाम जो है वो बिल्कुल प्रसिद्धि की पीक पर होगा, मीन्स टू से तुम फेमस हो जाओगे. लुक एट स्टेला, स्टेला की तरफ देखो, एंड देन बिगिन टू राइट, और फिर जो है तुम लिखना शुरू कर दो. पोइट हिमसेल्फ इंटेंड्स टू डू सो. फिलिप सिडनी भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं. हिज म्यूज, हिज स्टेला, हिज बिलवड यू कैन सी lives in his heart, वो उनके दिल में रहती है. he would seek inspiration from her, वो उनसे ही इंस्पिरेशन लेते हैं. not from the outdated conventions and the stale ideas, वो कभी भी outdated conventions का सहारा नहीं लेते. his Stella would inspire him, वो उन्हें इंस्पायर करती है. and inspired by her he would be able to write really great poetry. एक दिन ऐसा है कि वो बहुत अच्छी जो है रियली ग्रेट पोइट्री लिखेंगे. किससे इंस्पायर होकर? अपनी बिलवर्ड स्टेला से. दस द सोनेट बिकम्स बोथ एन एक्सपोजिशन ऑफ हिज आर्टिस्टिक ग्रीड एंड अ ग्रेसफुल कॉम्प्लीमेंट टू हिज बिलवर्ड स्टेला. I hope you all are able to understand the poem very well.
Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Thank you.